एक मिनट इसको स्टार्ट होने दो जरा। चलिए, तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने आई थिंक ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट देख लिए थे ना। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट वी हैव सीन इन द ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट हो गए थे ज्योमेट्रिक। अब हमारे मोशन स्टेटमेंट, मोशन अगर हमें देना है तो किस तरीके से टूल के मोशन को हम डिफाइन करेंगे। ओके, सो मोशन स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि क्या क्या मोशन स्टेटमेंट होते हैं। So these motion statements are generally used to give just provide the relative motion between the workpiece and the cutting tool. तो कटिंग टूल और वर्कपीस जो होगा उसके बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या कर देना पड़ता है, मोशन स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। और दोज मोशन स्टेटमेंट जनरली आर डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द कटिंग टूल, इन विच ट्रेजेक्टरी और एट विच पाथ the cutting tool will be moving, and similarly the statement will remain same. That is, first we will be giving the motion command and the descriptive data. This is the syntax that we will be using for defining these particular statement, motion statement. Okay, so first motion command and then its descriptive data. This is the way to represent or to give a motion command. So commonly used motion word for point to point. Remember, for point to point motion statement. For point to point motion statement, these following words are used. What are the words? Number one, from मतलब जब भी कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हो, जैसे आपको आपका जो कटिंग टूल होगा, आपका कटिंग टूल विल बी मूविंग फ्रॉम योर कटिंग टूल विल बी मूविंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट. Suppose that this is a point A and some point B here. Point A is here, point B is here, and your cutting tool will be moving along this line from one to A to B. So you will be defining from A to B. Okay, so from means it is used to give or defining the starting point of the motion, where the tool is starting its motion. It will be given by the from command. Go to, at which point you want to move. So from A to B. So go to matlab go to. Remember, there are two go to and another is go/to. Go/to, both of these commands are different. Go to is another, go/to is different. Okay, go to and go/to. So this go to command is used for point to point motion. This go to is used for point to point motion statement, is used as a point to point motion statement, while go/to is used to start the contouring motion, to start the contouring motion. To start the sequence of contouring motion. To start the sequence of contouring motion. Important है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Sequence of contouring motion. contouring. Contouring motion. Contouring motion स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, go/to देना है, और पॉइंट टू पॉइंट मोशन डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें go to देना है. ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना, पूछा जा सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. चलिए अब अगला देख लेते हैं. ये हो गया गो डेल्टा, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, बट इन इंक्रीमेंटल मोड. टू गिव और डिफाइन द मोशन इन द इंक्रीमेंटल मोड, वी विल बी यूजिंग गो डेल्टा. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम डिफाइनिंग पॉइंट A is here, point B is here, your cutting tool is moving from point A to point B. Suppose we are having some coordinatal system, and initially there are some coordinate value from A to point B. So you will be giving the value from A to B. When you are giving the motion in the incremental mode you will be using go delta. In absolute mode you will be using go to. So remember these all these words, consider the capital letters. Go on, go past, go let की जगह पर लेफ्ट लिखना है इसको. गो लेफ्ट, इसमें करेक्शन करना है, गो लेफ्ट हो जाएगा. गो राइट, गो अप,
गो डाउन, गो फॉरवर्ड, FWD लिखते हैं फॉरवर्ड को, गो बैक, ये हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द स्टेटमेंट, मोशन स्टेटमेंट विच आर जनरली यूज्ड टू प्रोवाइड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कटिंग टूल एंड द वर्क पीस। ओके, कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं। एक फॉर्म सिंपल एक कमांड अगर हम बताएंगे तो फ्रॉम स्लैश -2 -3 -10, मतलब अब आपका जो कटिंग टूल है इस पोजीशन से गो, फ्रॉम के बाद याद रखना गो टू, ये जितने भी मोशन कमांड होते हैं उससे पहले फ्रॉम जरूर आएगा। गो टू कहां पे जाना है, -2 -1 -3 एंड 1, मतलब आपका जो कटिंग टूल है वे इस पर्टिकुलर लोकेशन से इस लोकेशन तक उसे जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका कौन सा कमांड हो जाएगा, दिस इज वी आर डिफाइनिंग द मोशन इन दी एब्सोल्यूट मोड, बट व्हेन वी आर यूजिंग गो डेल्टा, व्हेन वी वांट टू गिव इंस्ट्रक्ट द कटिंग टूल इन द इंक्रीमेंटल मोड, देन वी विल बी यूजिंग गो डेल्टा, गो DLTA /3,4,2, इस तरीके से डिफाइन करने के लिए। सो यू विल बी डिफाइनिंग द कमांड, सो योर कटिंग टूल विल मूव 3 पॉइंट इन X direction, 4 point in Y direction and 2 point in Z direction from its current position। ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये डिस्टेंस बताइए कि आपको X डायरेक्शन में उसकी करंट लोकेशन से इतनी डिस्टेंस जाना है, Y डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस जाना है और Z डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस जाना है। ठीक है, सो दिस इज what we use this go delta to defining the motion of cutting tool in the incremental mode। ठीक है, for giving the motion statement like what the different meanings of the terms go up, go down, go left, go right, go forward। ठीक है, go left जो LFT होता है, सॉरी E वहां से हटा सकते हो, LFT जो होता है वो लेफ्ट के लिए होता है, गो लेफ्ट के लिए ना, E नहीं आता है इसमें, गो LFT आता है, गो RGT आता है, गो FWD फॉरवर्ड, गो बैक। तो ये मोशन स्टेटमेंट कब यूज करेंगे, किस तरीके से सिग्निफिकेंस से, किस तरीके से कटिंग टूल होता है। तो सपोज ये आपका मैंने डायग्राम बता दिया है, जैसे मान लिया कि आपका कटिंग टूल यहां पर है, तो ये डायरेक्शन आपकी होगी, ये सेंटर लाइन है, दिस इज योर कटिंग टूल। ओके, दिस इज योर कटिंग टूल। सो व्हेन योर कटिंग टूल इज मूविंग अलोंग दिस, when your cutting tool is moving along this direction, so you will be defining the, remember ये जो go up, go down, go right, go left, go forward जो होता है, ये आप यूज करोगे किसमें, पॉइंट टू पॉइंट के लिए। पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अभी कंटूरिंग की बात नहीं की है मैंने, पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कटिंग टूल जा रहा है, तो अगर आपका कटिंग टूल इधर जा रहा है तो ये गो फॉरवर्ड है। ठीक है, सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस, आप यहां से अभी इधर नहीं जा रहे हो, आप यहां से यहां जा रहे हो, ये आपका मोशन है। ठीक है, तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो, आपका कटिंग टूल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है, लाइक दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, तो A से B जाएगा, और दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज T, दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज G। तो जब आपका कटिंग टूल योर G और यहां पे H कर लेते हैं, when your cutting tool is moving in this direction, so your cutting tool is moving from A to B, then you will be writing go forward, go forward। ठीक है, जब आपको स्ट्रेट जाना है एकदम, कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं मुड़ना है, then you will be defining in the current position go forward। then if you want to go back, then you will be giving the motion command go back। तो जो भी करंट लोकेशन अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब गो राइट है, इस पॉइंट से देखेंगे जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है उसके ये राइट में पड़ेगा, this motion will be in the right direction, so this is used to give or turn motion in the right direction of the workpiece, so this is used for go right, और ये आपका लेफ्ट में पड़ेगा, and this is used to give the motion in the left direction, so go LFT, this command is used to for the motion of the tool in the leftward direction। when you want to move in the upward direction, then you will be giving the command go up, so go up command is used to move the tool in the upward direction, and to move the tool in the downward direction, go down command is used like this। Okay, so this is the use of motion command when you will be using go up, go forward, go right, go left, go back and go forward। These things, these motion commands you will be using, and identify which motion is required to move the tool। Okay, suppose I am just creating a workpiece over here for an example like this। Like this is your workpiece, and
हियर इज योर कटिंग टूल, यहाँ पे कोई कटिंग टूल है आपका, लेट सपोज दिस इज योर कटिंग टूल. So when you are going in this direction, right, this is forward, this is back, this is left, this is up, and this is down. Okay, so this is how we will be defining the command: go up, go down, go left, go right, and these things. So I hope that you have clear about some important commands like go from हो गया, go to, go delta, and go up, go right, go down, go forward, go back, and go left के लिए LFT होगा. LET की जगह पे LFT लिखना है इसको, LFT की जगह पे LFT, go LFT, go left के लिए LFT. यहाँ तक ठीक है, चलिए. ओके, नाउ लेट अस डिफाइनिंग द टर्म go on, go past, go on, go past, and go /to, go to past on, go /to. इसमें एक कमांड मिस है go /to वाली, तो इसमें ऐड कर सकते हो go /to, go /to. ओके, go /to, go on, go past, इन सब तीनों कमांड के बारे में समझने से पहले we have to define some important surfaces, and sometimes those surfaces are all directly asked in the exam. Okay, so these are the motion commands, but these commands we will be using. Just a minute. So this is what we will be discussing, some important motion command, but these motion command will be using in the point-to-point control system. But sometimes we have to provide the contouring motion also. So whenever some contouring motion is given on a particular workpiece while machining a workpiece, in that case we will be using the concept of part surface, check surface, and the drive surface. Okay, part surface, check surface, and drive surface. So we have to discuss the concept of these surfaces. So I can define those terms with this diagram. Okay, so just imagine that this was your workpiece initially, and I have cut some portion from it. So and suppose your cutting tool is moving from this point. Your cutting tool is moving from this. समझ में आ रहा है? ये वाली सरफेस दिख रही है आपका कटिंग टूल, ये एक सरफेस बन रही है ना, इस तरीके से कटा हुआ है इधर, ऐसे ऐसे ऐसे. ये डायग्राम समझ में आ रहा ना, ये वाला, इसको भी भूल जाओ. ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ तो सही है. यस सर आ रहा. तो इसमें क्या है कि यहाँ से एक स्लाइस काट दी हमने, यहाँ से वाला स्लाइस. अब क्या है कि आपका जो कटिंग टूल है, योर कटिंग टूल जो भी है, कटिंग टूल आपका, सपोज यहाँ पे कटिंग टूल मैं बना देता हूँ अभी. लेट दिस इज योर कटिंग टूल. वैसे तो ये बना हुआ है कटिंग टूल, मैं एक और बना देता हूँ. ये कटिंग टूल है आपका. अब क्या है, आपका कटिंग टूल क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटूरिंग मोशन दिया हुआ है मैं अवेलेबल. ठीक है, कंटूरिंग मोशन यहाँ पर अवेलेबल है. तो क्या होगा, आपका कटिंग टूल इस डायरेक्शन में जा रहा है. आपका कटिंग टूल किस डायरेक्शन में जा रहा है? योर कटिंग टूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो जहां पर कटिंग टूल की जो पेरिफेरी होती है, कटिंग टूल की ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मोशन और इन द कंटूरिंग मोशन, the surface which is guiding the cutting tool is called drive surface, or in which your cutting tool is moving. समझ में आ रहा है? ठीक है. ड्राइव सर्फेस क्या है? इट इज द सरफेस दैट गाइड्स द साइड ऑफ द कटर. कटर जो होता है, उस कटर की जो साइड होती है, उस साइड को गाइड करने वाली जो सरफेस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइव सरफेस. इट इज द सरफेस दैट गाइड द साइड ऑफ कटिंग टूल. इस तरीके से लिख सकते हो. ड्राइव सरफेस द सरफेस दैट गाइड द साइड ऑफ कटिंग टूल. या यू कैन से ड्राइव सरफेस इज अ गाइडिंग सरफेस दैट गाइड्स द साइड ऑफ कटिंग टूल. कटिंग टूल की साइड जो होगी उसको गाइड करने का. अब देखो आपका कटिंग टूल किधर जा रहा है,
तो ये सरफेस बता रही है कि आपके कटिंग टूल को अभी इधर जाना है। समझ में आ गया? तो ये सरफेस कौन सी होगी? ये वाली आपकी, इस पे पॉइंट बना देता हूं। ये वाली जो सरफेस है ग्रीन कलर से मैंने अभी पेंट किया, ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये सरफेस आपकी कौन सी सरफेस होगी? गाइड सरफेस, जो कि आपके कटिंग टूल को गाइड करेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ड्राइव सरफेस समझ में आ गया? हाँ जी, यस सर। दूसरी सरफेस होती है पार्ट सरफेस। ड्राइव सरफेस के बाद फिर आता है पार्ट सरफेस। तो पार्ट सरफेस वो सरफेस होती है जो आपका जो कटिंग टूल होगा उस कटिंग टूल की बॉटम एज के पैरेलल होगी या उसको टच करते हुए जाएगा। ठीक है, पार्ट सरफेस इज द सरफेस ऑन विच बॉटम ऑफ द कटर राइट्स, बॉटम ऑफ द कटर राइट। इट इज द सरफेस ऑन विच बॉटम ऑफ द कटर, बॉटम ऑफ द कटर राइट्स, RIDES। ठीक है, राइड करता है बॉटम, या वो, या यू कैन से पार्ट सरफेस इज अ सरफेस इधर पासिस थ्रू द बॉटम सरफेस ऑफ बॉटम, it is the surface either passes through the bottom surface of the cutting tool or is parallel to the bottom surface of the cutting tool। ठीक है, यही है कि जो आपका कटिंग टूल है उस कटिंग टूल की बॉटम सरफेस के या तो पास होती है या उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो आप देखोगे ये जो सरफेस है कटिंग टूल की, ये कटिंग टूल की बॉटम सरफेस है और ये इस सरफेस के या तो कांटेक्ट में होगा या ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जो देख रहे हो, ये वाली जो सरफेस देख रहे हो, वो इसके पैरेलल सरफेस है। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? पार्ट सरफेस। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे अगर आपका ये कटिंग टूल है तो आप देखोगे ये वाली जो सरफेस है बॉटम सरफेस कटिंग टूल की, वो इसके पैरेलल है। तो इस सरफेस को बोलते हैं उसकी पार्ट सरफेस। ठीक है, ठीक है, द सरफेस ऑन विच बॉटम ऑफ द कटर राइट, या तो बॉटम जो है कटर का वो राइड करेगा या उसके पैरेलल होगी सरफेस, उसको हम बोलते हैं पार्ट सरफेस। चेक सरफेस देख लो, ये राइट साइड वाली, ये वाली जो सरफेस है राइट साइड, दैट इंडिकेट्स और जस्ट विच इज यूज्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द टूल इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो चेक सरफेस ये बताएगी कि अब जो आपका कटिंग टूल है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना बंद कर देगा, अब ये कोई दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो दिस इज द चेक सरफेस। Check surface is the surface which is used to stop the movement of the tool, or it is the surface that stops the movement of the tool in its correct direction, in its movement of the tool in its, इसमें ऐड कर लेना, in its current direction, in its current direction, current direction। ठीक है, तो जो चेक सरफेस होती है वो ये इंडिकेट करती है कि भाई जो आपका कटिंग टूल है अब वो उस करंट डायरेक्शन में जिसमें वो चल रहा है उसमें चलना बंद कर देगा, स्टॉप कर। समझ में आ गया? चेक सरफेस, पार्ट सरफेस और ड्राइव सरफेस का कंसेप्ट। ठीक है, तो दीज आर जनरली यूज्ड इन केस ऑफ द कंटूरिंग मोशन। ठीक है, चलिए अब इसमें भी 3 कमांड हम देते हैं, 3 मोशन कमांड्स आर यूज, और ये मतलब ये जो तीनों कमांड है वो एक साथ दी जाती है। ठीक है, इसमें पहले तो आपको ड्राइव सरफेस बतानी होती है, फिर पार्ट सरफेस बतानी होती है और फिर चेक सरफेस बतानी होती है। तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? सो चेक सरफेस शुड बी यूज्ड इन द पार्ट प्रोग्राम केयरफुली, सम मॉडिफायर वर्ड्स आर यूज्ड इन द APT पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर पोजिशनिंग द टूल विद रिस्पेक्ट टू द चेक अप्रोप्रिएटली। तो इसमें ये कमांड होती है आपकी टू ऑन पास्ट एंड 10 टू, टू ऑन पास्ट एंड 10 टू। ठीक है, सपोज के आपका जो कटिंग टूल है वो यहां से चल रहा है, ये आपका कटिंग टूल है। ठीक है, ये कटिंग टूल आपका चल रहा है, कट करते हुए जा रहा है यहां से यहां पर। तो बताइए इसमें कौन सी सरफेस पार्ट सरफेस होगी? ये बताइए। ये आपका कटिंग टूल चल रहा है तो ये पार्ट सरफेस हो जाएगी, क्योंकि ये वाले कटर का जो साइड जो बॉटम है वो इसके पैरेलल है या इससे टच होता हुआ जा रहा है। इसके बाद ये मोशन आपका इधर इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इस सरफेस को, क्योंकि ये गाइडिंग सरफेस है तो ये आपकी ड्राइव सरफेस हो जाएगी, ये पार्ट सरफेस, तो ऑब्वियसली ये आपकी चेक सरफेस होगी। अब आपका कटिंग टूल यहां से जा रहा है और यहां जाते हुए अब इसको क्या करना है, इसमें 2 चीजें आती है। एक तो टू कमांड कब यूज करते हैं, जब आपका कटिंग टूल दूर नहीं जा रहा है। कहां नहीं जा रहा है? दूर नहीं जा रहा है। जैसे आपने देखा ये चेक सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है? चेक सरफेस। तो आपका कटिंग टूल चेक सरफेस से दूर नहीं गया है, चेक सरफेस के पास में ही है।
तो आप गो टू यूज करोगे, गो टू। और ये गो टू कौन सा है, go/to वाला है, याद रखना है, go/to वाला। समझ में आ गया, ये go/to वाला यहां पे यूज होगा, दैट इज यूज्ड इन द कंटूरिंग मोशन। समझ में आ गया कि नहीं। कंटूरिंग मोशन को इनिशिएट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो go/to होता है, जबकि go to जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट मोशन के लिए होगा। तो आपने क्या देखा, आपका कटिंग टूल था और कटिंग टूल मूव करने के बाद ये जो सरफेस देख रहे हो चेक सरफेस, उससे बाहर नहीं गया, उससे पहले ही पहले, मतलब जो कटर है उस कटर की सरफेस जो है चेक सरफेस के टेंजेंट में है अभी। ठीक है, इसकी पेरिफेरी जो है कटर की, the periphery of the cutter is tangent to this check surface but in the inside direction, अंदर की ओर है। अब हम यहां देखते हैं, यहां पे क्या है, यहां पे जो आपका कटर है वो कटर इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे जो आपकी चेक सरफेस थी उस चेक सरफेस पे चल रहा है। चलने का मतलब ये कि उसका सेंटर, इसका जो सेंटर था वो इसकी जो भी चेक सरफेस है उसकी सेंटर लाइन पे मार्क हो रहा है। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो किस पर चल रहा है, इस सरफेस के एंड पे चल रहा है, या ये जो सरफेस यहाँ पर है उस लाइन पर चल रहा है, तो ये ऑन आ जाएगा। आपको इस केस में गो ऑन यूज करना है। ठीक है, अब तीसरा केस है पास्ट का मतलब होता है बाहर। तो अगर आपकी सरफेस ये है कटर की, ये आपका कटर पहले यहाँ पे था कटिंग करते हुए, ये आपकी चेक सरफेस थी, तो चेक सरफेस के बाहर चलता है, टेंजेंट है लेकिन चेक सरफेस से दूर जा रहा है। ठीक है, चेक सरफेस के बाहर चल रहा है, इस तरीके से जा रहा है यहाँ पर, लेकिन आउटसाइड में ये दूर दिखेगा आपको थोड़ा सा। अगर ये दूर जा रहा है तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। ये गो टू ऑन पास्ट, गो टू गो ऑन गो पास्ट, तीनों का मतलब समझ में आ गया। हाँ जी, जब ये ड्राइव सरफेस पर चलने लगेगा तो ऑन होगा, चेक सरफेस पर चलने लगा तो ऑन होगा, चेक सरफेस से पहले है तो टू होगा, चौक सरफेस के बाहर है तो पास्ट हो जाएगा। पास्ट का मतलब ऐसे ही बाहर होता है। ठीक है, आउटसाइड में। ठीक है, एक होता है टेंजेंट टू। तो टेंजेंट टू कब यूज करते हैं, टेंजेंट टू का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट टू। ये तब यूज करते हैं जब आपकी जो चेक सरफेस होती है, वो एक सर्कुलर चेक सरफेस होगी। व्हेन द चेक सरफेस इज अ सर्कुलर सरफेस, और जो ड्राइव सरफेस होती है वो सर्कुलर ड्राइव सरफेस जो होती है वो चेक सरफेस के टेंजेंट हो, उस केस में जो ड्राइव सरफेस, उस केस में हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग टेंजेंट टू। ठीक है, टू की जगह पर क्या यूज करेंगे, टेंजेंट टू। ठीक है, जो टू होगा उस टू की जगह पर टेंजेंट टू यूज कर देंगे, टेंजेंट टू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स है। और जब भी हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें ड्राइव सरफेस बतानी है, उसके बाद पार्ट सरफेस बतानी है, और उसके बाद चेक सरफेस। इस ऑर्डर में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये हालांकि मैंने एक कर्व बना दिया है, उसको और बता दिया, ये पास्ट, ये अगर यहां से चल रहे हैं, यहां से मोशन हमारा डिफाइन हो रहा है, तो ये टू, ये ऑन और ये पास्ट। ठीक है, अगर हम यहां से जाएंगे, टचिंग द सरफेस ऑन फार साइड, जब फार साइड की बात होगी तो पास्ट हो जाएगा, नियर साइड की बात होगी तो ऑन टू हो जाएगा, और सेंटर की बात होगी तो ऑन द सरफेस की बात होगी तो ऑन आ जाएगा। ठीक है, तीनों सरफेस समझ में आ गई। तो ये आपके मोशन कमांड हो गए। और मोशन कमांड में मैंने आपको I have emphasized the thing on the difference between go to and go/to, दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया है। तीसरी कमांड थी इनकी पोस्ट प्रोसेसर कमांड। तो पोस्ट प्रोसेसर कमांड जो होती है, these are used to control the machining operation। ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कूलेंट को ऑन करने के लिए COOLENT on/on यूज किया जाता है, कूलेंट ऑफ करने के लिए COOLENT/off यूज किया जाता है, स्पिंडल के आरपीएम डिफाइन करने के लिए SPINDL यूज किया जाता है, स्लैश यहाँ पे आरपीएम लिख देते हैं 800 जो भी है, स्पिंडल स्लैश अगर 800 लिया तो 800 आरपीएम आपने डिसाइड कर लिए। फीड रेट के लिए FEDRAT स्लैश समथिंग, जो भी फीड रेट आपको mm पर मिनट में देनी है वो यहाँ यूज हो जाएगी। मशीन स्लैश, तो स्पेसिफाई, मशीन टूल को स्पेसिफाई करने के लिए मशीन MACHINE नहीं लगाते हैं इसमें। अगर आपने मिल लिखा है यहाँ पे तो मिलिंग के लिए हो जाएगा, ड्रिल लिखा है तो ड्रिलिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, रैपिड मोशन के लिए, एंड प्रोग्राम को एंड करने के लिए, सॉरी मशीन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट किस लिए यूज किए जाते हैं, मशीन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एक स्टेटमेंट और रह गए हमारे, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट। तो ऑक्सिलरी स्टेटमेंट आर जनरली यूज्ड टू स्पेसिफाई द टॉलरेंसेस, द साइज ऑफ द कटर, डायमीटर एक्सेट्रा, पार्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन। अब इसमें जैसे टॉलरेंस डिसाइड करना है तो टॉलरेंस डिसाइड करने के तीन मेथड होते हैं, एक होता है इन टोल, एक होता है आउट टोल और एक होता है दोनों।
तो इंटोल में क्या होता है कि जो देखो एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग कैड में ड्राइंग शो करते हैं, जैसे ऑटो कैड में ड्राइंग बनानी होती है आपको उस तरीके से, तो आप देखोगे जब इसको जूम करके ये देखोगे तो आपको ये लगेगा ये बहुत छोटी छोटी लाइंस से मिलकर के बना है, ये कर्व नहीं है, बट इट इज अ इनफाइनाइट लाइंस को जब आप इस तरीके से ऐड करते हो तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, है ना। ये इंटरपोलेशन को यूज करता है, इंटरपोलेशन। तो हमें क्या करना पड़ता है, एग्जैक्ट जो सरफेस आपकी बन रही है और जो सरफेस रियल में बन रही है, यहाँ पे एक तो जो सरफेस आपको बनानी है ऐसी बनानी थी, लेकिन ये इसके नियर बाई सरफेस हम अप्रोक्सीमेट लाइंस अप्रोक्सीमेटेड करते हैं इसको नंबर ऑफ लाइन से, तो इनके बीच में एक पर्टिकुलर टॉलरेंस लेवल हमें डिसाइड कर देना होता है। तो अगर इंटोल का मतलब है कि आपकी जो सरफेस बन रही है जो कि लाइन की फॉर्म में, वो अंदर की ओर है, ये आपकी एक्चुअल सरफेस है। एक्चुअल सरफेस जो आप मतलब आइडियल सरफेस जो आपको चाहिए, ये आइडियल सरफेस है, और ये जो है वो एक्चुअल सरफेस है जो बन जनरेट हो रही है, ये एक्चुअल सरफेस है जो कि लाइंस की फॉर्म में, इनफिनिट लाइंस को जब ऐड करके बनाते हैं वो एक्चुअल सरफेस होगी, ये आइडियल सरफेस है। तो इनके बीच में हम एक पर्टिकुलर टॉलरेंस डिसाइड कर देते हैं कि भाई इनका मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इनटोल होगा। आउटटोल में क्या होगा कि ये जो लाइंस होंगी वो बाहर होंगी और ये जो कर्व होगा एक्चुअल वाला वो अंदर हो जाएगा, ठीक है, जैसा आप इसमें देख सकते हो। और कभी कभी दोनों डिसाइड कर लेते हैं, आउटटोल और इनटोल। आउट टॉलरेंस के लिए ये होता है आउटटोल, इनटॉलरेंस के लिए इनटोल वाला होता है, और दोनों के लिए आउटटोल इनटोल के लिए ये दोनों दे सकते हैं आप, आउट और इनटोल ये दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। तो आउटटोल ये हो गया, इनटोल ये हो गया, ठीक है। तो इसमें आउटटोल भी डिसाइड कर दिया और इनटॉलरेंस भी डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब जो भी आपका कटर लोकेशन होता है, कटर की लोकेशन को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं CLPRNT, ठीक है। CLPRNT का मतलब होता है कटर लोकेशन प्रिंट। तो ये क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगी कि इस टाइम पे आपका कटर जहां पर है उसकी लोकेशन को प्रिंट करके दे देगा, बता देगा कि कहां पर, ठीक है, ऑन द NC टेप। ये हो जाएगा आपका क्लियर, कटर लोकेशन को प्रिंट देने के लिए। फिनी जो होता है, फिनी जो हमारे कमांड यूज करते हैं प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, एंड करने के लिए, इट इज यूज टू एंड द प्रोग्राम। और END यूज जो होता है वो मशीन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, टू स्टॉप द मशीन, ठीक है। या मान लिया किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को बंद करने के बाद कुछ और काम करना होता है, उस टाइम पे भी हम एंड कमांड दे देते हैं। कटर जो कमांड यूज की जाती है, दिस कटर कमांड इज यूज टू गिव द ऑफसेट, कटर ऑफसेट कंपनसेशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। दिस वर्ड इज यूज टू गिव द ऑफसेट कैलकुलेशन ऑफ द टूल पाथ। तो जैसे अगर मैंने दिया कटर 0.8 तो 8 mm, मतलब ये हो गया कि हमारा जो कटर है उसका डायमीटर 0.8 mm है, 0.8 mm है, और 0.4 mm ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये रेडियस के बराबर ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा आपका कटर, ठीक है। कटर को ऑफसेट करने के लिए हम कटर स्लैश ये कमांड देते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कमांड्स और ऑल द स्टेटमेंट्स यूज्ड इन द APT पार्ट प्रोग्रामिंग। In the next session, we will be prepare a part program for drilling operation, for milling operation, ठीक है, for contouring operation। तो ये पार्ट प्रोग्राम हम अगली क्लास में बनाएंगे। यहाँ तक आई थिंक यू हैव होप के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं।